सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हनिया ने कहा है कि फ़लस्तीनियों को पाकिस्तान से बड़ी उम्मीदें हैं। पाकिस्तान एक बहादुर मुल्क है, अगर यहाँ से पैगाम गया तो इसराइल के मज़ालिम रुक सकते हैं। इस्लामाबाद में होने वाली हुर्मत मस्जिद अक्सा कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक पर खिताब करते हुए इस्माइल हनिया वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान हमारी मदद करे तो इसराइल का जो गजा ऑफेंसिव है वो रुक सकता है। जो है उन्होंने पाकिस्तान से हेल्प करने की, उनका ये बहादुर मुल्क है, मुजाहिदीन है, ये हमारी हेल्प करे। বন্ধুরা, জঙ্গি হামাসের লিডার ইসমাইল হানিয়া একটি প্রেস কনফারেন্সের সময় তিনি বলেছিল যে বর্তমান সময়ে পাকিস্তান একটি বাহাদুর দেশ, তাদের দেশে মুজাহিদ্দিন অ্যাভেলেবেল। দেখুন, মুজাহিদ্দিন তাদেরকে বলা হয় যারা বর্তমান সময়ে জঙ্গিপনার সাথে যুক্ত, তাদেরকে মুজাহিদ বলে। যেটাই হোক, উনি বলেছিল যে বর্তমানের সময়ে চলা যুদ্ধ মানে গাজায় যেভাবে ইসরায়েল আক্রমণ করছে আর হামাস যেভাবে রিটালিয়েট করছে, বা বর্তমান সময়ে যেভাবে ইসরায়েল রিটালিয়েট করছে, হামাস যেভাবে প্রোটেক্ট করছে, এটিকে একমাত্র এই কনফ্লিক্টকে থামাতে পারে পাকিস্তান। আপনাদের বলে দিই, যে যেমন টাইপের ব্যক্তি সে তেমন টাইপের ব্যক্তির কাছে সাহায্য চায়, যে যেমন টাইপের ব্যক্তি সে তেমন টাইপের ব্যক্তিকে সমর্থন করে, এটা আপনারাও জানেন। আর এটাও তো আপনারা জানেন গোটা বিশ্বে ইসলামিক চরিত্রটা কি। আপনারা এটাও ভালোভাবে জেনে গেছেন যে বর্তমান সময়ে গোটা বিশ্বে শুয়োর ফ্যাক্টরি উৎপাদন করে কিন্তু পাকিস্তান। আর এই শুয়োরগুলো শুধু উৎপাদন করে না, তারা এক্সপোর্টও করে। কিসের? কিছু ডলারের বিনিময়ে। তাই এটা হামাস লিডার ভালোভাবে বুঝে গেছে, এই মুহূর্তে যদি আমাদের কেউ সাহায্য করে থাকে তবে সেটি হচ্ছে একমাত্র করতে পারবে পাকিস্তান। কেননা পাকিস্তান বিশ্বে একমাত্র দেশ যারা আজকে তারা নিজেরাই শুয়োরকে উৎপাদিত করার গোটা বিশ্বে এক্সপোর্ট করে। যেমনটা ঠিক আর্মেনিয়া আজারবাইজান যুদ্ধে করেছিল, তাই হয়তো এই যুদ্ধ করলেও করতে পারে। আর এই বিষয়টিকে নিয়ে পাকিস্তানের ঘরের ভেতরে জোরসোরে চর্চা চলছে যে ইসমাইল হানিয়া যেটা বলেছে সেটাতে কি তাহলে পাকিস্তান বিচার করছে? দেখুন, পাকিস্তান একটি হচ্ছে লোভী দেশ। বর্তমান সময়ে এদের অর্থব্যবস্থা যেভাবে ভেঙে পড়ছে, হয়তো কিছু টাকার বিনিময়ে কিছু উৎপাদিত তাদের শোরগুলোকে জঙ্গি হামাসের জন্য লড়ার জন্য পাঠিয়েও দিতে পারে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু অবাক করার বিষয় এটাই, জঙ্গি হামাসের লিডার গোটা বিশ্বের এতগুলো দেশ থাকতে কেনই তারা পাকিস্তানকে বলল? দেখুন, ওরা এটা ভালোভাবে জানে বিশ্বে একমাত্র দেশ হচ্ছে পাকিস্তান যারা শুয়োরকে উৎপাদন করে, এর সাথে সাথে গোটা বিশ্বে এক্সপোর্ট করে পয়সার জন্য। তাই এখানে কিছুটা ধর্মের নাম নিয়ে কিছুটা ইমোশন ভরে দিলে বাকিটা আপনা আপনি হয়ে যাবে। দেখার বিষয় এটাই, পুরো বিষয়টার উপর এখন পাকিস্তান কি করে আর এই বিষয়ের উপর পাকিস্তান মিডিয়া কি বলে। দেখে নিন পুরো ভিডিও ক্লিপটি, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন। सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हनिया ने कहा है कि फ़लस्तीनियों को पाकिस्तान से बड़ी उम्मीदें हैं। पाकिस्तान एक बहादुर मुल्क है, अगर यहाँ से पैगाम गया तो इसराइल के मज़ालिम रुक सकते हैं। इस्लामाबाद में होने वाली हुर्मत मस्जिद अक्सा कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक पर खिताब करते हुए इस्माइल हनिया का कहना था कि इसराइल अचानक गाज़ा पर हमले करके उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहता है। दोस्तों, एक बड़ी हैरानगी की खबर ये है कि हमास, जिसको बहुत सारे मुल्कों ने एक दहशतगर्द जमात डिक्लेयर किया हुआ है, कोई मिलिटेंट कहता है, कोई दहशतगर्द कहता है, उसके लीडर जो इस्माइल हानिया है वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान हमारी मदद करे तो इसराइल का जो गजा ऑफेंसिव है वो रुक सकता है और ये सीज फायर बंद हो सकता है। ये जो फ़लस्तीनियों के खिलाफ जो वो कहते हैं क्रूएलिटी है, ये बंद हो सकती है। और वो उन्होंने यूएन को भी कहा और सारी चीज़ें। बट द क्वेश्चन रिमेन्स, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई कि ये जो मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ जिसमें पाकिस्तान के एक मौलाना साहब हैं, मौलाना फजलुर रहमान, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के सरबराह, इनकी सियासी जमात 100 साल पुरानी है। ये इस जंग के बाद इस्माइल हानिया को मिलने चले गए। जैसे ये जंग शुरू हुई तो ये कतर दोहा में चले गए और वहाँ पे जाके इन्होंने उनसे गपशप भी की है। अब जारी बात है, ये इंडिया जो है उसको देखें अगर आप, तो वो तो आज उसमें इंडियन पार्लियामेंट के अंदर एक प्रपोजल आया हुआ था कि आप हमास को जो है वो बैन करें। और इस हवाले से एक मुझे उनका नाम है, आई थिंक श्री सुधाकरन, एक पार्लियामेंटेरियन है आई थिंक, उन्होंने कहा जी कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको डिक्लेयर करे एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और क्या ऐसा कोई प्रपोजल है गवर्नमेंट के पास? और इस जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो जिसे वो कहते हैं उससे सवाल किया गया और मेरा ख्याल है उस पर उन्होंने कहा कि जो डेजिग्नेशन है वो जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत जो है जिसे वो कहते हैं ना कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको दहशतगर्द कंसिडर किया जाता है
वो रेलिवेंट डिपार्टमेंट ने किया हुआ है. सो इट मीन्स दैट दे आर नॉट डूइंग इट फ्रॉम द पार्लियामेंट प्लेटफॉर्म, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने फिलहाल इसको जो एक डिफरेंट वो कह अदारों के पास ये ऑलरेडी थीम मौजूद है. इंडिया उसको दहशतगर्द जमात करार दे रहा है थ्रू इट्स इंस्टीट्यूशंस, नॉट थ्रू द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट. पाकिस्तान जो है उससे इस्माइल हानिया ने मदद मांग ली है. अब ये क्वेश्चन, और मजे की बात है कि बहुत सारे जो पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस हैं वो बड़ी अजीब अजीब बातें भी कर रहे हैं, जिसमें एक पार्लियामेंटेरियन जो थे वो मुशाहिद हुसैन थे. उन्होंने रिसेंटली कहा कि पाकिस्तान को तो हमास को रिकग्नाइज करना चाहिए. के आतंकियों के साथ आतंकी देश पाकिस्तान है. पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ के दामाद और मरियम नवाज के पति मोहम्मद सफदर पर भी हमास का भूत सवार है. पाकिस्तान पहले ही ये स्वीकार कर चुका है कि उनकी फौज ने हमास के आतंकियों को ट्रेनिंग दी है. इसीलिए अब हमास की मदद के लिए पाकिस्तान की सेना को भेजने की भी मांग उठने लगी है. शाह साहब जो है उन्होंने जो एक स्पीच की है उसके अंदर उन्होंने बाकायदा कहा है कि जनाब पीओके हमारा है. एक तो ये कि उनकी वो वाली जो उन्होंने स्टेटमेंट है वो चल रही है, और दूसरा ये कि उन्होंने तो कश्मीर की मतलब हमारी तरफ की सारी वो सीट्स भी बता दी कि जी ये है और हम ये करेंगे. तो ये इसके ऊपर बड़े पाकिस्तान में कंसर्न्स शो किए जा रहे हैं. सर क्या इस पे आप इसको कैसे देख रहे हैं कि ये जो बात है ये कैसे आगे बढ़ रही है? देखिए, मैं इसको एक चीज के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा कि हानिया, इस्माइल हानिया जो है, उन्होंने पाकिस्तान से हेल्प करने की, उनका ये बहादुर मुल्क है, मुजाहिदीन है, ये हमारी हेल्प करे. और जो अमित शाह साहब ने स्पीच दी है, किसी ने कवर नहीं की पाकिस्तान. आज 2 दिन हो चुके इस बार. उन्होंने कहा ये हमारा है, 24 सीटें हमने रिजर्व कर ली हैं वहां के लिए. और ये नेहरू साहब की गलती थी उस वक्त जो इन्होंने सीज फायर किया. अगर सीज फायर ना करते तो लाहौर भी आज हमारा होता. तो ये अमित शाह साहब ने. और उन्होंने 370 आर्टिकल के बारे में बड़ी बड़ी तफसील से फारूक अब्दुल्ला साहब ने कुछ जवाबात दिए. उसके फिर लोकसभा के अंदर बड़ी उन्होंने धुआंधार स्पीच दी, लेकिन किसी ने उसको तकलीफ नहीं की पाकिस्तान में कवर करने की. किसी ने कोई तकलीफ नहीं. अब मैं पूछना चाहूंगा इस्माइल हानिया साहब से कि आप ये क्या मजाक कर रहे हैं हमारे साथ, कि हम आपकी जो है वो इसराइल के साथ उसमें हम इंटरफेयर कर सकते हैं? भाईजान, आपने कहा है बहादुर, हम ना तो बहादुर हैं ना आपने कहा मुजाहिदीन. मेरे ख्याल में गलती से लाइन मिल गई है पाकिस्तान की. करना वो अफगानिस्तान में चाहते थे काल, क्योंकि मुजाहिदीन सारे तो अफगान ही अफगानिस्तान में होते. ये आपका मजाक है, ब्लंडर है, ये क्या है? दूसरा मैं ये पूछना चाहूंगा कि चले अमित शाह साहब की बात का तो ये जवाब ना देने की सख्त रखते हैं, ना देंगे, लेकिन क्या फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी कोई जवाब, मीडिया पे भी नहीं? और नहीं, वो कहेंगे शायद हमें आवाज नहीं आई, शायद यही कह देंगे कि हमें पता ही नहीं चला. यही होगा. देना होता तो 2 दिन, या आज की नई बात नहीं है, ये 2 दिन की बात. उस पर आलिया एक और खासकर एक और भी बात करना चाहूंगा कि क्या, और जो लाहौर के अंदर वीडियो लिंक पे कहा, इस्लामाबाद के अंदर ये वीडियो लिंक के में इस्माइल हानिया साहब ने कहा है आपके 2 दुकानदार जो हैं, एक तो मदरसों वाले दुकानदार हैं जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, उन्होंने अपने मदरसों की मार्केटिंग के लिए दोहा जाकर मिले हैं इस्माइल हानिया से, हमास से. दूसरे भाईजान जो हैं जमात इस्लामी के हैं, उनकी भी दुकान है इसी किस्म की मिलती जुलती दुकान. वो जाके उन्होंने भी जाके इस्माइल हानिया को दोहा में मिले. अब मेरा उनसे ये क्वेश्चन नहीं है क्योंकि उनका तो कारोबार है. मेरी आपकी स्टेट से ये पूछना चाहूंगा कि क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं ये सारे लल्ले तरल्ले? आपकी इस वक्त दुनिया में शनाख्त किस चीज से है? जब पाकिस्तान का नाम लिया जाए तो क्या ज़हन में आता है? क्या आप अफोर्ड कर पाते थे कि यहां पे इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़े हॉल के अंदर जना सिंपोजियम, या जहां पे वो स्पीच उन्होंने की है वीडियो लिंक के जरिए इस्माइल हानिया ने, क्या आपको ये करना चाहिए था ये? और मैं इसी को रिलेट करूंगा आपके लो रिजर्व के साथ कि इस वक्त आप सिर्फ IMF के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं क्योंकि CPEC तो आपने बंद कर दिया. तो क्या आपको मालूम है कि IMF अमेरिका के अंदर वॉशिंगटन DC में है और सबसे ज्यादा IMF के फंड अमेरिका देता है, और अमेरिका ने हमास को दहशतगर्द तंजीम करार दे रखा है.